Hello, dear students. Welcome to the e-learning platform of Nalanda Vidyalay. Myself, Patel Pritesh. I welcome all of you to the digital platform of Nalanda Vidyalay. Today, in this session, we are going to start a new chapter of our 5th standard English grammar with the chapter number 24, with the title, The Sentence. Dear students, I hope you all are fit, fine and healthy and remain healthy also. We have just started the uploading part of English grammar chapters. As I told you, as the part of our second terminal syllabus, we have to complete the syllabus of English grammar first. Then if time will be there, we will start the English literature portion of the remaining chapters. Yes, we have completed chapter number 21, 22 and 23 after Diwali break. That is time for chapter number 24. I hope you have completed all the exercise related work in your notebook and textbook up to chapter number 23. I will also remember you that one more time. I have skipped chapter number 19 and 20. I will repeat it again. I have skipped chapter number 19 and 20 as both the chapters are little bit, we can say, heavy and we can say little bit a tough one. So after completing all these important sentence, or we can say the chapters of sentence, subject verb agreement, punctuations, adjectives, adverbs, all the important parts of speech, conjunctions, prepositions that we have completed, then after all these chapters, then I will start chapter number 19 and 20. So don't worry, it's not going to exclude from our syllabus. It will come, but later on, not in chronological order, as I told you previous in the live sessions also. So dear students, let's start chapter number 24 with the title, This Sentence. We are studying in English language. So all the languages are very we can say important. They have their own importance. उनकी खुद की हम कह सकते हैं कि importance होती है. जो भी language होती है वो. और हम पढ़ रहे हैं English language. So obviously there will be a grammar also. तो उसके अंदर जो हमारा grammar है वो बहुत important है. Right now we are studying one of the important or key feature of that English grammar, and that is the sentence. English language में sentence हम कहेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सेंटेंस ही ऐसे हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, आइडिया को, और व्हाटएवर हम जो भी कहना चाहते हैं वो हम सेंटेंस से ही हम सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं. हमारे थॉट हो, हमारी इमेजिनेशन हो, आइडिया हो, और व्हाटएवर द थिंग्स. इन ऑल लैंग्वेजेस यस देयर आर सेंटेंसेस. सो इन द इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव ऑल्सो द सेंटेंसेस. व्हाट इज सेंटेंस? Which are the types of sentences in English? We will see and we will study in this chapter in detail. So yes, let's go for the explanation part of the sentence. After that, we will try to explain the exercise part of this chapter. So student, first question that will come in your mind is, sir, what is sentence? Sentence जिसे हम कहते हैं वाक्य. तो वो होता क्या है? बेसिकली इन अ वेरी सिंपल डेफिनेशन दैट सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज अरेंज इन अ वेल मैनर. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसे हम अरेंज करते हैं अच्छे, हम कहेंगे कि सिस्टमेटिकली, कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वो सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसके अंदर होते हैं. वो सारे कंप्लीट अपने आप जब एक साथ हम कहेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रखते हैं, तब जाके एक सेंटेंस हम बनाते हैं विथ कंप्लीट मीनिंग, फुल मीनिंग जिसे हम कहते हैं. जो सेंटेंस होता है उसका खुद का एक मीनिंग होता है. सो यस, लेट्स सी फर्स्ट इट्स डेफिनेशन. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप, दो ग्रुप, ऐसे एक दो वर्ड्स नहीं, एक दो में भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, और हम बहुत सारे 10-15 वर्ड्स यूज करके भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, बट विथ
दैट कंप्लीट सेंस, वो जो सेंस होना चाहिए, मतलब कि उसकी जो मीनिंग है वो निकलनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. यस, देन गोइंग फॉरवर्ड, a sentence is a group of words that expresses a thought. हमारा जो विचार है वो हम एक्सप्रेस करते हैं एक सेंटेंस में. There are 4 types of sentences. In English language, basically there are 4 types of sentences. Please remember all the names, okay, one by one. First, a simple sentence. It is also called statement sentence. It is also called declarative sentence, and it is most used name of that sentence is which one? If you remember that, if you have taught these types of sentences in your 4th standard, that okay, I will ask you, okay, later on also. But a simple sentence, it is also called statement sentence, it is also called declarative sentence, and it is also called yes, it is also called assertive sentence. It is not written over here, but it is called assertive sentence mainly, which is the most popular name of this sentence. Is not simple sentence but assertive sentence. So a simple sentence or assertive sentence or statement sentence or declarative sentence states a fact or gives information. It is positive or negative. जिस सेंटेंस से हमें फैक्ट या हमें इंफॉर्मेशन जिसे मिलती है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. ये या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं. ओके, नंबर 2, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. कुछ पूछने के लिए हम जो सेंटेंस को हम यूज करते हैं डिफरेंट वर्ड्स, उस टाइप ऑफ सेंटेंस को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, टू आस्क अ क्वेश्चन. Third one, an imperative sentence is a command and expresses an order or request. कमांड करने के लिए या कोई हम कहते हैं कि ऑर्डर या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए imperative sentence हम यूज करते हैं. नंबर 4, an exclamatory sentence expresses strong feelings. हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, ओके, खुश होने की, दुखी होने की, एक्साइटेड होने की, ये सारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं वो दिखाने के लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. प्लीज रिमेंबर. सो दिस इज ओनली इन ब्रीफ. आपको जो अभी पढ़ना है हमारा ये पूरा चैप्टर एंड द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन डिटेल, ओके, वो अभी बाद में भी हमें पढ़ना है, बट दिस इज इन वेरी ब्रीफ. व्हाट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence and exclamatory sentence. Let's see one by one with examples. Yes, read this sentences. Water freezes at 0 degrees Celsius. My school starts with a prayer. अब दोनों सेंटेंसेस में हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो वाटर है वो जम जाता है कौन से डिग्री टेम्परेचर पे? 0 डिग्री टेम्परेचर पे. जो स्कूल है हमारी वो हर रोज कैसे स्टार्ट होती है? प्रेयर से. ओके, तो ये यहाँ पे एक हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन दी गई है. सो दिस सेंटेंस इज स्टेट्स अ फैक्ट और डिक्लेयर समथिंग. जो फैक्ट है वो ये है कि जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें कुछ डिक्लेयर भी करते हैं, मतलब कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं. दे आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. जो फैक्ट या फिर हम कहेंगे कि डिक्लेयर करते हैं या फिर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. दे एंड विथ अ फुल स्टॉप. यस, ऑब्वियसली, लाइक most all other types of sentences, this sentence is also assertive sentence is also end with a full stop. You can see here in the bracket full stop. So this is the first type, that is called assertive or declarative sentence. It is also called simple sentence. It is also called statement sentence. Okay, इसके 4 नाम हैं. तो हमें जो याद रखना है वो है फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में कि जो सेंटेंसेस में हमें फैक्ट या फिर हम कहेंगे कि कोई इंफॉर्मेशन या कुछ डिक्लेयर करते हैं, तो उस सेंटेंस को कहते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्लियर? गोइंग फॉरवर्ड टू द सेकंड टाइप. डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर. प्लीज लीव द रूम. सिट डाउन ऑन द स्टूल. ये सारे सेंटेंसेस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है,
कोई फैक्ट नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे है क्या, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी ऐसी नहीं है, तो यहाँ पे है क्या, या तो कमांड है या ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट कहाँ है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि एक वर्ड ऐसा है जो रिक्वेस्ट के लिए हर बार यूज होता है, दैट इज कॉल्ड प्लीज। यस, सो डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ये हम कहेंगे कि एक सजेशन भी है। प्लीज लीव द रूम, ये एक रिक्वेस्ट है। सिट डाउन ऑन द स्टूल, हम ये कहेंगे कि कमांड भी हो सकता है या ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे जैसे बोलने का टोन होता है, सिट डाउन ऑन द स्टूल, सो दैट इज द कमांड। ओके, ऑर्डर भी हो सकता है। ओके, सिट डाउन ऑन द स्टूल। So these three types of different examples of these sentences are called imperative sentences. These sentences are commands, request or instructions. Okay, they are called imperative sentences. Which sentences? Imperative sentences. They end up, okay, they end with a full stop. ये भी जो sentence है वो end होते हैं full stop से। तो imperative sentences कहाँ कहाँ यूज होते हैं? Okay, again in commands, request and giving instructions, for giving instruction also. So ये सारी जगह पे हम imperative sentences यूज करते हैं, या फिर हम कहेंगे कि ऐसा कोई कमांड, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शंस अगर किसी सेंटेंस में यूज हुए हैं तो वो कौन सा टाइप का सेंटेंस है? यस, imperative sentence. Is it clear? Yes, let's go forward for the third type of sentence. Where were you yesterday? Do you know the latest score? इन दोनों में हम कहेंगे कि इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेट का दूसरा मतलब होता है कि आप पूछताछ करते हैं। इंटरोगेट जो है ना, इंटरोगेटिव, उसका शॉर्ट नेम जो हम कहेंगे, जो उसका जो मेन वर्ड है वो है इंटरोगेट। तो इंटरोगेट का मतलब होता है पूछताछ। तो यहाँ पे हम कुछ पूछताछ कर रहे हैं। वेयर वर यू यस्टरडे? डू यू नो द लेटेस्ट स्कोर? इन दोनों सेंटेंसेस के एग्जाम्पल में हम इंटरोगेट करते हैं, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। टू होम वी डोंट नो। सो दिस सेंटेंस इज आस्क क्वेश्चंस। कोई इंफॉर्मेशन जानने के लिए, कोई डाउट हमारा क्लियर करने के लिए, वो सब के लिए हम कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दे एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि जो एसर्टिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, उन दोनों में फुल स्टॉप आते थे, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इंटरोगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, वेरेवर वी आस्क क्वेश्चन इन द सेंटेंस, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से, देन वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आई विल रिपीट दिस 2 times. Wherever we ask a question or wherever there is a question, okay, then we have to put a question mark. Okay, it is over here in bracket. You can see also here the question mark at the end of the sentence. It is compulsory. If you put a full stop instead of question mark in interrogative sentences, what will happen? Yes, that answer is wrong. आपका जो आंसर है ना वो रॉन्ग हो जाता है ऑटोमेटिक। भले ही आपने सारे जो वर्ब्स हैं, उसके बाद नाउन के बाद सारा जो आपने ऑर्डर में लिखा होगा, कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस। बट अगर आपने पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। फुल स्टॉप लगाने से वो सेंटेंस या तो असर्टिव हो जाता है या इंपरेटिव हो जाता है। बट फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्लीज रिमेंबर, वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. So to ask questions, okay, we can ask any kind of questions, okay, and that kind of sentence is called interrogative sentences. Going forward to the fourth and last type of sentences. That's an amazing story. What a pretty flower. In both the sentences, the feeling of that story is very, very strong. Okay. After seeing and after taking the smell of that flower, it is your feeling is also very, very, we can say strong, and you are amazed. So इन दोनों में sentences के examples में जो story की बात करें या flower की बात करें, तो आपकी जो feeling है वो बहुत ही strong है according to that story सुनने के बाद और flower की smell या उसे देखने के बाद, उसका color देखने के बाद. So these sentences express joy or strong feelings.
जॉय और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत ही एक्साइटेड जैसे हम फीलिंग होते हैं, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं। और अगर ऐसी कोई इमोशंस जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग्स हैं और जॉय की या दूसरी हम कहेंगे कि जो यूज़ होती हैं, तो कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ प्लीज रिमेंबर, दे एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। I will make it bigger to make you understand what is called exclamation mark. This is called exclamation mark. Okay, question mark is different and exclamation mark is different. Okay, so please remember, yes, after, or we can say at the end of the exclamatory sentence, we have to put a, or we can say an exclamation mark. So the question will arise in your mind, sir, which sentence is assertive, which sentence is imperative and which sentence is, yes, exclamatory sentence. तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सारे सेंटेंसेस में है। जो assertive सेंटेंस है उसमें फैक्ट या फिर कुछ डिक्लेयर होता है, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर होती है, आपको तुरंत पता चल जाएगा आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस। प्लीज रिमेंबर, आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस। देन इन इंपरेटिव सेंटेंस कोई कमांड, रिक्वेस्ट या हम कहेंगे कि ऑर्डर होता है। ओके, अब उसमें पता चल जाता है, कम हियर, क्लोज द डोर, गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज स्विच ऑन द फैन। ओके, ये सारे जो सेंटेंसेस है उससे हम पता चलता है कि कमांड है, इंस्ट्रक्शंस हैं, सजेशंस हैं, ये सारे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई डाउट नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा, अगर क्वेश्चन है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है विथ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब रहा फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में याद रखना कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। वाव, एलास, लुक, प्रिटी, व्हाट अ, देखो यहाँ पे जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, व्हाट अ, अमेजिंग स्टोरी, वंडरफुल डे, इंटरेस्टिंग मूवी। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं फ्रेजेस होते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसे हम फ्रेजेस कहते हैं, वो ज़्यादा यूज होते हैं किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखानी होती है, एक्सप्रेस करनी होती है। यस, फीलिंग ऑफ जॉय, एक्साइटमेंट, ओके, दैट इज ओनली। तो ये जो फोर्थ टाइप का हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ, जो फीलिंग्स होती हैं स्ट्रॉन्ग, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा जॉय वाली फीलिंग होती है, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यस, now for a quick revision what we have learned, let's learn again, let's revise the things what we have just completed few minutes ago, what we have taught. There are four kinds of sentences. Okay, first one, Jaya loves reading books. तो ये जो पहला सेंटेंस है वो आपको पता चल गया होगा कि वो assertive या declarative सेंटेंस है। A sentence that states or declares a fact is an assertive or declarative sentence. This sentence is end in a full stop or with a full stop. Yes. Where is the boss? Now here you are asking, you are interrogating about something. So sentence that asks a question is called an interrogative sentence. This sentence is end in a question mark. Okay, or with a question mark at the end. What a lovely day. Okay, तो आपके जो दिन है वो आपका अच्छा अभी अब तक पास हुआ है और बहुत ही प्लेजेंट है, उसके एटमॉस्फेयर हम कहेंगे, तो आप वो एक्सप्रेस जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में, व्हाट अ लवली डे। सो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस सेंटेंस इज एंड इन एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, यू कैन सी ओवर हियर एक्सक्लेमेशन मार्क, हियर ऑल्सो like question mark is very important for interrogative sentences. Exclamation mark is also very important for exclamatory sentence. ये दोनों हम कहेंगे कि उनके मार्किंग जो पंक्चुएशन जिसे कहते हैं उसके वजह से ही हम इजीली उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फिनिश योर लंच राइट नाउ। पहला सेंटेंस है उसमें एक रिक्वेस्ट है, लेकिन दूसरा है उसमें हम कहेंगे कि कमांड है या हम कहेंगे कि ऑर्डर है। So sentence that expresses a command or a request is called an imperative sentence. This sentence is also end in a full stop or end with a full stop. तो
प्लीज़ हैं वो आएगा और हम कहेंगे कि सीधा हम कहेंगे गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, सिट ऑन द बेंच, डू योर वर्क। ओके, सो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट जिसे कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं यूज़ होते हैं, तो वो कमांड होते हैं, ऑर्डर होते हैं, कभी कभी हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन होते हैं, सजेशंस भी होते हैं, और हम कहेंगे रिक्वेस्ट भी होता है। तो ये सारे जो हम कहेंगे कि यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यस प्लीज़ रिमेंबर इम्परेटिव सेंटेंसेस। सो द 4 types of sentences are assertive sentences, then interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. I hope you understand all these 4 types of sentences, okay, with examples also, and then we can say meaning or we can say usage, where to use and how to identify the different types of sentences. Now it's time to start the explanation of our textual part. So let's start the textual exercise and also the textual content part. So we have completed the 4 types of sentences. Number 1, assertive sentences or declarative sentences. Number 2, imperative sentences. Number 3, interrogative sentences. And number 4, exclamatory sentences. Here in the textbook, the content part is given with also details. So let's revise again what we have learned few minutes ago. Read this. Mini goes. Okay, there are only 2 words, mini goes. So that will not make any kind of sense. कोई meaning उससे नहीं आता है. Another word, mini goes to the market. उससे हमें कंप्लीट सेंस आता है कि हाँ मिनी कहाँ गई, मार्केट में गई. तो इसे कहते हैं परफेक्ट कंप्लीट सेंटेंस. प्लीज रिमेंबर द फर्स्ट वन इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज इनकम्प्लीट. सो लेट्स सी द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक सेंस. मिनी गोज उससे कोई मतलब नहीं निकलता. बट द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू. मिनी गोज टू द मार्केट, उससे हमें परफेक्ट सेंस या उसका मीनिंग निकलता है. द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज अ सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. और वो कौन से टाइप का है वो हम बाद में उसे डिसाइड करते हैं. अब यहाँ पे हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यस कौन सा होगा वो. यस देयर आर 4 वन, असर्टिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. तो मिनी गोज टू मार्केट, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, हम कहेंगे कि कोई ऐसी स्ट्रांग फीलिंग नहीं है. तो यस ये एक सिंपल सा हम कहेंगे डिक्लेयर करती है इंफॉर्मेशन, तो इसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. A sentence is a group of words that makes complete sense. Please remember, मैंने पहले भी आपको कहा और अब फिर से कह रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं. ओके, कंप्लीट सेंस. A sentence usually has nouns, verbs, adverbs और adjectives and all other different parts of speech also, जिसमें conjunction, prepositions बहुत सारे हैं. अदर वर्ड्स भी आते हैं, phrases आते हैं, clauses आते हैं, वो भी आपको समझने की जरूरत नहीं है. ओके, द मेन थिंग दैट वी हैव टू लर्न टुडे दैट इज व्हाट इज अ सेंटेंस एंड व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. यस, सो नंबर देयर आर 4. यस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. दे आर असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. Let's see one by one with examples. An assertive sentence is a sentence that gives information. और हम कहेंगे जो फैक्ट बताते हैं, ओके, इंफॉर्मेशन देते हैं या डिक्लेयर करते हैं कुछ ना कुछ, उस सेंटेंसेस को हम कहेंगे assertive sentences. It can be positive और negative. वो कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. It is also known as a declarative sentence, as I told you earlier. Examples are Satish is writing a story. Pooja will not be going to Jaipur. The teacher will take a test tomorrow. तो नॉट लगाने से उसका कोई टाइप चेंज नहीं हो जाता है. प्लीज रिमेंबर, किसी भी सेंटेंस में नॉट, डिड नॉट और हम कहेंगे कि दूसरे जो नेगेटिव वर्ड्स हम लगाने से उस सेंटेंस का टाइप चेंज नहीं हो जाता है. हाँ, उसका जो टाइप होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका हम चेंज करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव. दैट विल कम इन अवर नेक्स्ट चैप्टर ओनली. जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 25, वो हमें इसमें ही बात पूरा फोकस करना है कि नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव कुछ सेंटेंसेस.
So this is the first one, assertive sentence, or we can say declarative sentence, that gives the information or we can say states the fact. जो फैक्ट है वो दिखाते हैं या डिक्लेयर करते हैं कुछ ना कुछ चीजें. नेक्स्ट टाइप इज एन इंपरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू गिव एन ऑर्डर, अ कमांड, एन एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और मेक अ रिक्वेस्ट. आई विल रिपीट. इंपरेटिव सेंटेंसेस है वो क्या क्या करने के लिए यूज होते हैं? टू गिव एन ऑर्डर, टू गिव ए कमांड, टू गिव एन एडवाइस, ओके, टू गिव डायरेक्शंस, टू गिव इंस्ट्रक्शंस और टू मेक अ रिक्वेस्ट. Please remember, take a left and you will reach the post office. Directions. Please have some tea. Request. Get Joy a glass of water. इसे हम ऑर्डर करेंगे या कमांड भी कह सकते हैं. ओके, get Joy a glass of water. So imperative sentence कमांड, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम यूज करते हैं. प्लीज रिमेंबर द यूज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस. इट्स वेरी इजी. क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं. ओके, हाउ हैव यू बीन? आप कैसे हो अब तक? डू दे लिव हियर? वेयर डिड रितु गो? ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस इसमें हमने इंटरोगेट किया, मतलब कि क्वेश्चन पूछा है. दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. द नेक्स्ट वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन ऑफ जॉय, फियर, सरप्राइज, पेन, एंगर और पिटी. ये सारी जो हमारी सडन हम कहेंगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है वो हम एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं. उसमें बहुत सारे मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आते हैं. वाव, अलास, व्हाट, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रेजेस है वो यूज करते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, दैट्स टेरिबल न्यूज. ओके, इस सारे सेंटेंसेस में हम कहेंगे कि जो हमारी इमोशन है वो बहुत ही सडन होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो जॉय की होती है, फियर की, सरप्राइज की, पेन की, एंगर की या पीटी की. पीटी का मतलब होता है दुख होना, बहुत ही गहरा दुख होना, उसे हम कहते हैं पीटी. ओके, सो these are all 4 types of sentences with their usage, with their meaning also. कहाँ हमें यूज करना होता है. And how can we identify the given sentence? Okay, is a given sentence into 4 types of sentence. Either it is a assertive, imperative, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. इट इज़ वेरी वेरी इजी. जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो ऑलरेडी उसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी. नाउ देयर इज अ डाउट इन एसर्टिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस. तो एसर्टिव सेंटेंसेस में फैक्ट या फिर हम कहेंगे कोई डिक्लेयर होता है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे एसर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं. जबकि जो सेंटेंसेस में हम कहेंगे कि कमांड करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं या फिर कई सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. डायरेक्शंस के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, सजेशंस के लिए. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट यूजेज ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस. इन टोटल देयर आर 4 exercises. All the exercises are very very easy. Let's see one by one. So first one is identify the kinds of sentences. First is very easy one, that we have to identify the kinds of sentences. Okay, assertive, interrogative, imperative और exclamatory. इन 4 में से किसी एक को आंसर उसमें लिखना होता है. Yes, I will make it little bit bigger for you. फर्स्ट वन इज डन फॉर अस. रेनो हैज अ न्यू पेन. एसर्टिव, यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं कि रेनो के पास न्यू पेन है. द रोजेस लुक ब्यूटीफुल. अगेन वी आर डिक्लेयरिंग दैट यस समथिंग इज ओके, इंफॉर्मेशन देते हैं रोजेस के बारे में, दैट इज एसर्टिव. वेयर इज माई बुक? इंटरोगेटिव क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन पूछा आपने. लीव द डोर ओपन, तो आपने ये कमांड की, तो इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस. रन टू द केमिस्ट शॉप, आपने यहाँ पे अगर फिर से आपने कमांड की या ऑर्डर किया है तो इसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. क्विक, हाइड अंडर द टेबल,
तो ये आपका जो सडन इंप्रेशन है आपका सरप्राइज का, आप कहेंगे कि किसी को सरप्राइज देने के लिए, क्विक हाइड अंडर द टेबल, तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, प्लीज रिमेंबर। ओके, नंबर 7, द बुक्स आर केप्ट इन ऑर्डर, assertive sentence. Okay, very simple information is given. When will you go home? Interrogative sentence. This lamp is too bright. Assertive sentence, information देते हैं। Open the windows. Order. Order भी कह सकते, command भी कह सकते कि open the windows. So imperative sentence. Clear? These are very very simple. Okay, how to identify? We can say we have to write the perfect answer of this sentences of which type the sentence is. Exercise B is totally of different one. Rearrange the words to make complete sentences. Again, rearrange the words to make complete sentences. Use full stops, comma, exclamation marks or question marks as necessary. यहाँ पे जो हम कहते थे ना, वो जंबल करके दे देते हैं हमें वर्ड्स, ओके, तो हमें उसे रीअरेंज करना है। सारे वर्ड्स में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो हमारा SVO पैटर्न है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उस पैटर्न से हमें उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकालने के साथ हमें उसको रीअरेंज करना है, उसको परफेक्ट ऑर्डर में। यहाँ पे कहीं पे भी फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो हमें लगाना है। वो भी हम सेंटेंस को अगर लिखेंगे उसके बाद हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। फर्स्ट वन इज डन फॉर अस। तो फर्स्ट वन इज यस आई लाइक स्ट्रॉबेरीज वेरी मच। ओके, यहाँ पे जो हम कहेंगे कि जो स्क्रम्बल किया है सारे वर्ड्स को, स्क्रम्बल जिसे हम कहते हैं ना, मिक्स मैच कर दिया, तो वो बहुत ही ईजी होता है। हम पहले भी ये ऐसे गेम्स खेलते थे, इफ यू रिमेंबर। ओके, सो लेट्स डू फॉर द सेकंड वन। That Saloni room cleaning is her. So Saloni is cleaning her room. It is a assertive sentence. Full stop. Okay. Number 3, play do tennis you. अब यहाँ पे हम कहेंगे कि you do play tennis, ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे with the verb do you play tennis? Yes, interrogative sentence. Do you play tennis? तो यू डू प्ले टेनिस ऐसा हम सेंटेंस नहीं बना सकते, ऐसा होता भी नहीं है। ओके, नंबर 4, लुक ब्यूटीफुल द माउंटेन्स। तो ये मैं पहले कह देता हूं कि ये एसर्टिव सेंटेंस है। सो यस, द माउंटेन्स लुक ब्यूटीफुल, सिंपल, द माउंटेन्स लुक ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन, पद्मा एक्साइटेड रीड टू वॉज बुक। It is also we can say another example of assertive sentence. Padma was excited to read the book. यहाँ पे the नहीं, लेकिन हम ऐड कर देंगे स्पेसिफिक वर्ड के लिए, the book. So Padma was excited to read the book. Assertive sentence. Okay. Next, 6th number. Turn, take, signal, write, the, at. अब जितने डिवीजन होंगे, जितने स्क्रैम्बल ज़्यादा होंगे, जितने वर्ड्स अलग अलग होंगे, उतना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। बट डोंट ओके गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी वेरी इजी। एक एक करके हम सारे जो स्क्रैम्बल वर्ड है उसे हम रीअरेंज करेंगे। तो पहले आता है टेक आएगा, टेक, सिग्नल, राइट, ये सब आगे नहीं आ सकता। ओके, सो टेक अ टर्न एट द राइट सिग्नल, टेक अ टर्न एट द राइट सिग्नल। तो ये है हमारा एसर्टिव सेंटेंस है। ओके ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 7, डूइंग, वीकेंड, दिस आर व्हाट यू। अब बीच में एक वर्ड आ गया WH, तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड है, तो ऑब्वियसली हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। So what are you doing this weekend? Again, what are you doing this weekend? At the last, yes, question mark. Please do not forget to put question mark at the end of interrogative sentences. Going forward, gift you for thank the. So it is very thank you for the gift. Assertive.
Thank you for the gift. Number 9. Leave, did, प्रखर, open, door, दी. अब did आया ना तो हम did को क्वेश्चन में ही यूज करेंगे. ओके, क्योंकि वो जो do है उसका पास्ट फॉर्म है, वो did है, वो क्वेश्चन के लिए यूज होता है. तो प्लीज रिमेंबर, did प्रखर, leave the door open, did प्रखर, leave the door open, and at the last question mark for interrogative sentence. Number 10. Water of bring a glass me. अब यहां पे हम कहेंगे कि कमांड है छोटा सा, तो यहां पे आएगा bring me a glass of water. Okay, bring me a glass of water. So it is, we can say, imperative sentence. I hope you understand exercise B. Exercise C is different one, and how it is different, let's see it. Change these sentences as indicated. जो ब्रैकेट में यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दिए, उस टाइप के सेंटेंसेस हमें बनाने हैं. वी हैव टू चेंज द सेंटेंसेस. यूज सुटेबल पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, ओके, वी कैन से एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, उसे हम कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स. सो फर्स्ट वन इज डन फॉर अस. कैन यू ड्रॉप मी एट द स्टेशन प्लीज. तो ये जो इंटरोगेटिव है उसका हमें कन्वर्ट करना है इंपरेटिव में. देखिए, ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इंटरोगेटिव है. ओके, पीछे हमें जो करना है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, इंपरेटिव में. तो यस, जो कैन यू जो वर्ड है जिससे हमने ये सेंटेंस को क्वेश्चन में बनाया है वो हम निकाल देंगे. सो सीधा हम इंपरेटिव के लिए जो कमांड देना है, वो कमांड या रिक्वेस्ट जो करनी है, तो प्लीज वर्ड है अंदर, तो प्लीज वर्ड हम यूज करेंगे. ड्रॉप मी एट द स्टेशन प्लीज. ड्रॉप मी एट द स्टेशन प्लीज. वेरी सिंपल. नंबर 2. हैज तरुण इटन दिस एप्पल. अगेन इंटरोगेटिव, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू असर्टिव, मतलब कि हमें इंफॉर्मेशन देनी है. सो तरुण हैज इटन दिस एप्पल. Very simple. Tarun has eaten this apple. We will remove the question mark and we will put full stop because it is a assertive sentence. Number 3. Rebecca is a good teacher. अब ये है assertive sentence. मैंने पहले आपको कहा कि जो सेंटेंस है उसको हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. Rebecca is a good teacher. तो ये एक assertive sentence है और हमें उसका कन्वर्ट करना है exclamatory sentence में with a strong feeling. Yes. सो व्हाट ऐसा वर्ड है जिससे वर्ड से क्वेश्चन नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क के एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन सेंटेंस भी हम बनाते हैं. सो व्हाट अ से, लेकिन याद रखना व्हाट अ से. सो व्हाट अ गुड टीचर रेबेका इज. जो रेबेका इज है वो हम पीछे ले जाएंगे क्योंकि हम उसे जो हमारी जो फीलिंग है बहुत ही स्ट्रांग है वो दिखाने के लिए. तो व्हाट अ गुड टीचर रेबेका इज, देन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. सो इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Number 4. Pratap is going to Bikaner next week. We have to make it interrogative sentence. It is assertive. So is, जहाँ पे प्रताप के बाद is आता है तो वो वर्ब हम आगे ले जाएंगे जब भी हम सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस, assertive सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब जो है उसकी हम जो प्लेस है वो इंटरचेंज करेंगे. सब्जेक्ट और वर्ब की प्लेस इंटरचेंज करेंगे. ये सब डिटेल में आएगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर में. ओके, डोंट वरी. हाउ टू फॉर्म अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस के ऊपर से, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे. सो प्रताप इज है उसकी जगह पर आ जाएगा इज प्रताप, और बाकी के जो सारे वर्ड्स है वो एज इट इज रहते हैं. इज प्रताप गोइंग टू बीकानेर नेक्स्ट वीक, एट द एंड क्वेश्चन मार्क, और हमारा जो टोन होता है वो क्वेश्चन का हो जाता है. अब अगर मैं इस टोन में इस सेंटेंस को बोलूंगा, इज प्रताप गोइंग टू बीकानेर नेक्स्ट वीक. ओके, सो देयर इज नॉट अ फीलिंग ऑफ क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो इज प्रताप गोइंग टू बीकानेर नेक्स्ट वीक, फुल स्टॉप, नॉट, बिकॉज इट इज इंटरोगेटिव क्वेश्चन. सो व्हाट विल कम, यस, क्वेश्चन मार्क विल कम. नंबर 5. कैन यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर सीरिंग. अब ये जो इंटरोगेटिव है उसका हमें इंपरेटिव बनाना है. ओके, सो कैन यू जो मैंने आपको पहले कहा था कि जिससे क्वेश्चन हमने बनाया है, वो फ्रेम किया है, उस वर्ड्स को हम निकाल देंगे. मेक अ कप ऑफ टी फॉर सीरिन.
Very simple. We have to remove can you, and then we have to start with the make a cup of tea for Shirin, full stop, because it is imperative sentence. So we can take a kind of a command or order. Number 6, is Ruchi taking part in the play? Again interrogative question sentence, and we have to make it assertive. Assertive मतलब कि हमें information देना है. So is जो है और रुचि है वो आगे पीछे हो जाएगा, इंटरचेंज, मैंने आपको पहले समझाया. ओके, सो इज हो जाएगा वर्ब की जगह पे, नाउन की जगह पे, मतलब कि सब्जेक्ट की जगह पे, और रुचि जो नाउन है सब्जेक्ट है वो आगे चला जाएगा. सो रुचि इज टेकिंग पार्ट इन द प्ले. रुचि इज है वो ऑलरेडी हमें दिया गया है, तो हमें आगे क्या लिखना है, टेकिंग पार्ट इन द प्ले. वही का वही. नाउ वी हैव टू रिमूव द क्वेश्चन मार्क एंड वी हैव टू पुट फुल स्टॉप फॉर एसर्टिव सेंटेंस. नंबर 7, दिस फ्लावर्स लुक सो ब्यूटीफुल. अब ये जो सेंटेंस है ना वो एसर्टिव है. ओके, उसे हमें एक्सक्लेमेटरी बनाना है. सो लुक एट, ये ऑलरेडी दिया है, लुक एट. अब हमें आगे लिखना है द फ्लावर्स. ओके, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स. लुक एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क ओवर देयर. लुक एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ओके, हम यहाँ पे कहेंगे लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये भी चलेगा. ओके, इट विल ऑल्सो राइट लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, नो प्रॉब्लम, बट लुक एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, नो प्रॉब्लम. बोथ द सेंटेंसेस आर ऑफ यू कैन से एक्सक्लेमेटरी टाइप. नंबर 8, Sehnaz has grown taller. Sehnaz has grown taller, so it is of assertive sentence. हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन देते हैं, सो हमें इसे इंटरोगेटिव बनाना है. सो मैंने पहले भी कहा था कि जो वर्ब होता है और जो नाउन होता है वो इंटरचेंज होता है. तो हैज सहनाज ग्रोन टॉलर एट द एंड क्वेश्चन मार्क. क्लियर? हैज सहनाज ग्रोन टॉलर एट द एंड क्वेश्चन मार्क. नंबर 9, व्हाट अ वंडरफुल बुक दिस वॉज. ये है, हम कहेंगे कि यस एक्सक्लेमेटरी में है, हमें इसे कन्वर्ट करना है एसर्टिव में. वेरी इजी. तो व्हाट अ वंडरफुल, इसमें जो व्हाट है उसकी जगह पे होगा दिस, अंदर दिया है दिस वॉज अ वंडरफुल बुक. सिंपल एसर्टिव, दिस वॉज अ वंडरफुल बुक. अब उसकी जगह हमें इसे यस एक्सक्लेमेटरी में अगर लिखना होता व्हाट अ वंडरफुल बुक दिस वॉज. नंबर 10, कुड यू प्लीज पास मी द राइस. कुड यू प्लीज पास मी द राइस, ये है इंटरोगेटिव क्वेश्चन. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उसका हमें बनाना है इंपरेटिव. ओके, तो रिक्वेस्ट यहाँ पे जो प्लीज है तो उसका हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ही आएगा, पास में द राइस प्लीज. यस, रिक्वेस्ट हमने बना दिया, पास में द राइस प्लीज. क्वेश्चन नहीं पूछा है. ओके, यहाँ पे जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें हमने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट पास में द राइस प्लीज. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट चेंजिंग द सेंटेंस. ओके, वन टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू द another type of sentence, okay, which is the sentence given in the bracket. I hope you learn and understand all 1 to 10 sentences. Exercise D is all about add one word each to complete this imperative or exclamatory sentences. हमें ये सारे imperative और exclamatory sentences को complete करने के लिए एक वर्ड आगे हमें ऐड करना है. दैट विल बी डिफरेंट, वो अलग अलग वर्ड हो सकते हैं. यहाँ पे लिखा है ब्लैंक योर बैग्स, तो यहाँ हम लिखेंगे ब्रिंग योर बैग्स, कलेक्ट योर बैग्स. ओके, तीसरा हम कहेंगे कि वर्ड्स जो है यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं, बट यहाँ पे पीछे हमें जो उसका पंक्चुएशन मार्क है वो देख के बाद हमें वो वर्ड चूज करने पड़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से. लेट मी मेक इट बिगर. यस. नंबर 2, ब्लैंक अ वंडरफुल आइडिया. तो हम पहले भी कहा था कि व्हाट, एलास, वाव, हाउ, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए भी यूज होते हैं. तो व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, सो इट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ब्लैंक दिस अम्ब्रेला फॉर अ व्हाइल, तो यहाँ पे आएगा होल्ड दिस अम्ब्रेला फॉर अ व्हाइल. देन ब्लैंक द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, सो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, एक सजेशन है. Then 5th one, blank the windows, so open the windows, तो हम ये भी कहेंगे close the windows, ये भी कह सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर है, कमांड है. नंबर 6,
Plan to bed now. So go to bed now. Number 7. Blank was a horrifying accident. So it was a horrifying accident. So that is आपका जो हम कहेंगे कि फीलिंग है बहुत ही स्ट्रांग है एक्सीडेंट देखने के बाद की, और आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज ओनली. नंबर 8. Blank the first train to Chennai. So what will come? Take the first train to Chennai. चेन्नई की सबसे पहली ट्रेन आप ले लीजिए. नंबर 9. Blank cold it is in January. So यहाँ पे आएगा how cold it is in January. ओके, तो जनवरी में तो सर्दी होगी तो आप जो है वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मतलब कि आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ करेंगे हाउ कोल्ड इट इज इन जनवरी. ओके. नंबर 10. Blank at those beautiful lilies. सो यहाँ पे आएगा look at those beautiful lilies. So look at those beautiful lilies. Exclamatory mark because this sentence is exclamatory sentence. Look at those beautiful lilies. So yes, this is all about our exercise A, B, C, D of the chapter number 24. I hope you understand all the questions and answers and also the content part of our chapter number 24 with the title This Sentence. We have completed the definition of this sentence, what is called sentence. Then we have learned the 4 types of sentences, starting with number 1, assertive sentence or declarative sentence. Number 2, imperative sentences. Number 3, interrogative sentences. And number 4, exclamatory sentences. Yes, this is all about our chapter number 24. So students, we will meet in the next session, in the next video. Till then, thank you. Goodbye.